Hello students, in our previous lecture we discussed about the story of Nina and the baby sparrow from English. Once again we revise shortly. The story Nina and the baby sparrow is about a kid Nina who is concerned about two baby sparrows in her room. She does not want to leave her home as it would require to lock the doors and windows. This would prevent the baby sparrows from being fed. इस स्टोरी में हमने क्या सुना था कि एक बेबी नीना है वो अपने बेबी स्पैरो के लिए कंसर्ट थी क्योंकि वो सभी शादी में जाने वाले थे और बेबी स्पैरो बहुत छोटे थे। अगर सभी दरवाजे और लॉक कर दिए जाएंगे तो वो कैसे उसके मम्मा पापा है उसको कैसे खिलाएंगे। उसकी मम्मी है वो उसको एक आइडिया देती है कि हम सब विंडोज़ है ना वो सभी ओपन कर देंगे। मम्मी पापा है स्पैरो के वो अपने बच्चों को खिला सकेंगे। लेट्स वी स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस स्टोरी। Question answer of this story. First one question, why was there great joy in Nina's house? नीना के घर में बहुत खुशी क्यों थी? Answer is there was a great joy in Nina's house because Nina's aunt was getting married and all of her family members were going to attend the wedding in Delhi. आपको पता ही है नीना के घर में खुशी क्यों थी, क्योंकि नीना की चाची की शादी होने वाली थी और वो सभी शादी में जाने वाले थे। Once again we revise, there was a great joy in Nina's house because Nina's aunt was getting married and all of her family members were going to attend the wedding in Delhi. Second one, why was Nina worried? नीना है वो वरी क्यों थी? आंसर इज नीना वॉज वरीड बिकॉज देयर वेर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट इन हर रूम। उसके रूम में नेस्ट में टू बेबी स्पैरो थे। इफ़ ऑल द फैमिली मेम्बर्स लेफ्ट एंड लॉक द हाउस द पापा एंड मम्मा स्पैरो वुड नॉट बी एबल टू फीड द बेबी स्पैरो। हम सब वो है ना ऐसा सोचती थी कि हम फैमिली मेम्बर है वो सभी है वो हाउस के विंडो और डोर है वो लॉक करके जाएंगे तो मम्मी पापा स्पैरो है वो अपने बेबी स्पैरो को कैसे खाना खिलाएंगे। वाई वॉज नीना वरीड? Once again answer, Nina was worried because there were two baby sparrows in the nest in her room. If all the family members left and locked the house, the papa and the mama sparrows would not be able to feed the baby sparrows. Question 3, what did mother suggest? मदर ने क्या सजेशन दिया था? आंसर, मदर suggested that they will remove everything from Nina's room and lock the room from the outside. उसकी मम्मी ने उसे ऐसा सजेशन दिया था कि नीना के रूम में जो सभी चीज़ें हैं वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देगी और वो रूम को बाहर से लॉक कर देगी। They will keep the window of Nina's room and open so that the papa and mama sparrows can come and feed the baby sparrow. वो नीना के रूम की जो विंडो है वो ओपन कर देगी सो मम्मा एंड पापा स्पैरो है ना वो अपने बेबी को खाना खिला सकेंगे। ये उसकी मम्मी ने सजेशन दिया था। फर्स्ट वंस अगेन रिवाइज, व्हाट डिड मदर सजेस्ट? मदर सजेस्टेड दैट दे विल रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम नीना's रूम एंड लॉक द रूम फ्रॉम द आउटसाइड। दे विल कीप द window of Nina's room open so that the papa and mama sparrow can come and feed the baby sparrow. Question 4, what did Nina find when she came back from the wedding? वो वेडिंग से वापस आई तो उसने क्या फाइंड किया? आंसर, when Nina came back from the wedding she saw two plump little sparrow flying all over the room. वो जब वापस आई तो जो छोटे छोटे से बेबी स्पैरो थे ना वो दोनों पूरे रूम में उड़ रहे थे।
What did Nina find when she came back from the wedding? Answer is when Nina came back from the wedding, she saw two plump little sparrows flying all over the room. Once again, we revise question. First one, why was there great joy in Nina's house? Answer, there was a great joy in Nina's house because Nina's aunt was getting married and all of her family members were going to attend the wedding in Delhi. Second one, why was Nina's worried? Answer is Nina was worried because there were two baby sparrows in the nest in her room. If all the family members left and locked the house, the papa and the mama sparrow would not be able to feed the baby sparrows. And the third one, what did mother suggest? Mother suggested that they will remove everything from Nina's room and lock the room from the outside. They will keep the window of Nina's room open so that the papa and mama sparrow can come and feed the baby sparrow. Fourth one, what did Nina find when she came back from the wedding? Answer is when Nina came back from the wedding, she saw two plump little sparrows flying all over the room. This is a question answer of this story. You can write in your notebook and learn. From textbook, this question answer is done recently. Next one, exercise talk time. फर्स्ट वन, हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट? बेबी स्पैरो है वो कैसे खाना खाते हैं? बेबी स्पैरोज आर फेड बाय देयर पेरेंट्स इनटू देयर बिक्स. बेबी स्पैरोज are fed by their parents into their beaks. Second one, what new things would you like to wear for a wedding? You can say I would like to wear. I would also like to wear. आपको शादी में है वो क्या पहनना पसंद करोगे? क्या ऐसी नई नई चीज़ें हैं? तो आपको जो चीज़ें पसंद हो पहनना वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. जैसे कि हम सलवार कमीज़ या फिर आपको पेंट टॉप या फिर लिपस्टिक करनी पसंद हो, आपको जो भी करना पसंद हो, जो भी पहनना पसंद हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. पिक्चर स्टोरी. नंबर द जम्बल्ड पिक्चर स्टोरी करेक्टली देन राइट द स्टोरी इन अ प्रॉपर ऑर्डर. यहाँ पे आपको पिक्चर दिए गए और नीचे लिखा हुआ है आपको 1 by 1 जैसे हमने स्टोरी में 1 by 1 आया था वहाँ ऐसे वहाँ पे नीचे 1 2 ऐसे 3 ऐसा नंबर्स देने हैं और फिर ये स्टोरी को वंस अगेन हमें फिर से लिखना है. फर्स्ट यहाँ पे ऐसा लिखा है, मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन. नीना इज़ हैप्पी अगेन. नीना इज़ सैड. मदर आस्क वाई. नीना डज नॉट वॉन्ट टू लीव द बेबी स्पैरो अलोन. हियर इज़ नीना इज़ सैड. फर्स्ट वन. सेकंड वन, मदर आस्क वाई. मदर ने पूछा क्यों सैड थी. हम यहाँ पे लिखेंगे 2. नीना डज नॉट वॉन्ट टू लीव द बेबी स्पैरो अलोन. दिस इज़ अ 3. नीना है वो बेबी स्पैरो को अकेले छोड़कर जाना चाहती थी नहीं. मदर सेज वी विल लीव द विंडोज़ ओपन. मदर ने उसके बाद ये सजेशन दिया था, हमने स्टोरी में देखा था. सो हियर इज़ अ नंबर 5. नीना इज़ हैप्पी अगेन. नीना को ये सजेशन अच्छा लगा और नीना हैप्पी हो गई. तो हियर इज़ नंबर 5. 1 2 3 4 and 5. This sentence you have to write again here. राइट स्टोरी हियर. अभी हमने जहाँ पे नंबर दिए वो 1 by 1 यहाँ पे हम लिखेंगे. फर्स्ट वन हमने क्या नंबर दिया था? नीना इज सैड. सेकंड वन हमने क्या लिखा था? मदर आस्क वाई. थर्ड वन क्या था? नीना डज नॉट want to leave the baby
sparrows alone. Fourth one, mother says we will leave the windows open. And the fifth one, Nina is happy again. Next one, would you like to have बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे? आपको बर्ड की विज़िट लेना हर रोज़ पसंद है? हर रोज़ आपको बर्ड के लिए विज़िट लेना पसंद है? ट्राई मेकिंग अ बर्ड बाथ एंड अ फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स. You can place a bowl of water in a quiet corner of the school playground. स्कूल का प्लेग्राउंड हो ना, वहाँ पे जहाँ पे क्वाइट कॉर्नर हो ना, वहाँ पे एक बाउल ऑफ वाटर है वो रखो. लीव ब्रेड क्लम्स grains एक्सेट्रा फॉर योर फेथर्स फ्रेंड्स. लेट्स ड्रॉ एंड कलर अ बर्ड. आपको वहाँ पे ऐसा रखना है, वहाँ पे जो भी बर्ड है उसका यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है और उसके अंदर कलर करना है. दिस इज़ अ एक्टिविटी यू कैन डू एट योर होम. नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट्स मेक अ बर्ड बनाना है. थिंग्स यू नीड, आपको जो चीज़ों की ज़रूरत हो वो है ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड, दाल, ब्लैक भिंडी, बीट्स फॉर आइस, उसकी आइस बनाने के लिए, सीजर्स, गम, ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड शू लेस. स्टेप्स, कैसे बनाना है उसके स्टेप्स. मेक एन आउटलाइन ऑफ द बर्ड ऑन अ ग्रीटिंग कार्ड एंड कट इट आउट. इसे बनानी है आउटलाइन, उसको कट करना है. कट अ स्मॉल स्क्वायर फ्रॉम एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक अ फैन. कीप द फैन क्लोज्ड. पास द फोल्डेड फैन थ्रू द cut on the bird's back and now open the folds of the fan. ऐसे make the eye by sticking a भिंडी, यहाँ पे ऐसे भिंडी स्टिक करके उसकी आई बनानी है. पेस्ट स्ट्रिंग और ओल्ड शू लेस टू हैंग द बर्ड. ऐसे यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम. अगर आपको ऐसी एक्टिविटी करना पसंद है तो ये स्टेप्स का यूज़ करके, ये चीज़ें इकट्ठा करके यू कैन डू इट. Word building. Next one exercise is word building. Write down suitable words. Describe each picture. You have to write here suitable words to describe each picture. Pick up the words from the list given below. Here is a list. You can use it. A blank woman. How look woman? तो woman है वो कैसी दिख रही है? तो woman like woman look fat. So a fat woman. You can write here a fat word. A blank rose, a red rose. You can hear a red rose. A blank boy, a happy boy. आपको boy है वो खुश दिख रहा है, so you can write here happy. A blank peacock, beautiful. A beautiful peacock. A blank board. बोर्ड कैसा होता है? तो ब्लैक. अ ब्लैक बोर्ड. नेक्स्ट वन, अ ब्लैंक मैन. लास्ट वन इज टॉल. अ टॉल मैन. हमने सभी पिक्चर को डिस्क्राइब कर दिया. अ फैट वुमेन, a red rose, a happy boy, a beautiful peacock, a blackboard, tall man. Now describe these pictures in your own language. आप अपनी लैंग्वेज में भी दिस पिक्चर को है वो डिस्क्राइब कर सकते हो. यू कैन डिस्क्राइब दिस पिक्चर इन योर ओन लैंग्वेज. नेक्स्ट वन एक्सरसाइज, से लाउड. आपके घर पे ये बोलना है. स्पॉइल, स्पॉट, स्पैरो, स्पीक, स्कूल, स्काउट, स्कॉट, स्कीप, स्कॉल्ड, स्कीम. This is a word you can say at your home. We finish
आवर चैप्टर 2 हियर। नेक्स्ट वन, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हैं वर्कबुक में से एक्सरसाइज करेंगे। वी विल डू एक्सरसाइज फ्रॉम द वर्कबुक ऑफ इंग्लिश।